Hello, dear student. How are you? How is going your study? Very well, fantastic, fabulous, and marvelous. बहुत बढ़िया, very good. Dear student, today our topic is rounding off. Yes, it is very important. You can say important also. Very नहीं लगाया तो आप. Okay. Now, what are the rules to round up the numbers? आपने राउंड ऑफ नंबर किए भी हैं. आज देखिए कुछ जरा हटके. Yes. If dropping digit, what is the dropping digit? It is also known as cutoff digit and terminating digit. So keep in mind your dropping digit is also known as cutoff and terminating digit. Sir, please example के साथ बताइए. Like that 2.560 So 2 is the dropping digit. This is the dropping digit. Okay, DD I am writing here DD, dropping digit, and this is the preceding digit, PD. Got the point? Preceding digit. Okay, so terms आपको क्लियर हुआ होगा. अब जब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल से समझेंगे. If dropping digit is greater than 5, then you have to apply preceding digit +1. जो भी प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें आपको +1 ऐड करना है. हाउ? लेट्स चेक. ध्यान दीजिएगा. एग्जाम्पल हम यहाँ कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए 2.678. So what is the terminating digit? Sir, 8 is terminating digit and 8 is terminating digit. You can say DD, dropping digit is 8 and which is greater than 5. So what will you do? Sir, PD is 7. PD is preceding digit is 7. So we have to apply +1. हमें क्या इसमें करना पड़ेगा? Add. So 7 replaced by 8. So 7 replaced by 8. So that approximation is given 2.678. Approx equal to 2.68. I think आप लोग पहले भी ये करते आ रहे हैं. आप लोगों को पता भी होगा. So this is the rule. If dropping digit, here dropping digit DD means dropping digit is at which is greater to 5. So what is the rule saying? Sir, add 1 in preceding digit. So here preceding PD is 7. When you add 1, you will get 8. So we can write like this: 2.67 approx equal to 2.68. Okay, take another one example. You can say 5.66. Okay, now round up this. What is the terminating digit? 6. Here DD is 6. If DD is 6 and PD is 6, this is greater than 5, so add 1. So what is the approximation here? 35.7. I hope got that point. हाँ, फिर उसको रिमूव कर दीजिएगा. 6 का हमने यहाँ से कैरी कर दिया एक तरह से 1 ऐड करने के बाद. तो हम 8 को एलिमिनेट करेंगे, ड्रॉपिंग करेंगे, कट ऑफ बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डिजिट है उसको. गॉट द पॉइंट? उसको रिमूव करेंगे, कट ऑफ करेंगे. नाउ नेक्स्ट रूल. व्हाट इज रूल नंबर सेकंड? दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट. What is saying rule number second? If dropping digit is less than 5, then preceding digit will remain as it is. Remain same. Okay. PD will be remain same. For example से समझिएगा. If I am saying 2.5654. Okay, 544. Now tell me, what is the cutoff digit, terminating digit? Sir, 4 is the terminating digit. So 4 is the terminating digit, or you can say DD. Here DD is dropping digit 4, which is less than 5. So what is rule saying? PD will remain same. What is the PD? Sir, PD is 4. This one is PD, this is DD.
ड्रॉपिंग डिजिट 4 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट है, कट ऑफ डिजिट है, वो लेस देन है 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगा. सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस? सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस? यू कैन से 2.55 अप्रोक्स इक्वल टू 2.54. Am I right? Very good. शाबाश. प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर 3.532. Okay, now tell me, dropping digit DD here 2, got the point, and which is less than 5, so preceding digit will remain same. So what is the approximation of it? You can write 3.53. I hope this is clear to all of you, और पहले से भी आप जानते होंगे. Now इस रूल को नेक्स्ट को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रेडी? yes dear student, dropping digit if 5 or 50, if dropping digit is, this is the rule number 3rd, this is the rule number you can say 3rd. What is saying that if dropping digit is 5 or 50, then there are two cases of it, like that. I'm saying that, pay your attention. Okay, the preceding digit is even. If preceding digit PD, I'm saying PD is even, then PD remains same. PD remains same. Got the point? अभी एग्जाम्पल से समझेंगे. If PD is odd, then you have to apply PD plus 1. PD को आप रिप्लेस करेंगे by adding 1. सर एग्जाम्पल से समझाइए. Let's take example of it. I'm saying 3.250. Okay, here dropping digit 5, or you can say number is 50. Dropping digit is 5 or number. I am taking number 50. So 50 is dropping digit. Okay, now check PD. This is the DP number. I am saying this is the DP number. Okay, dropping number DN you can say, and this is the preceding. If it is even, then it will remain unchanged, remain same, or you can say unchanged. Got the point? Every word. आप यहाँ देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जो लास्ट डिजिट और यू कैन से नंबर, अगर आपको यहाँ नंबर 50 गिवन है और उससे पहले इवन नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा. इसका अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा? 2.2, 3.2. Let's another example of it. Another example. I'm saying that 3.25. Now I'm taking dropping digit is 5. Okay, and before this preceding digit is even. If it is even, no change. Approximation of it 3.2. Now clear हुआ बच्चों? लाइक कर दीजिएगा जरूर. वेरी गुड. Now I'm taking another example for this one. Pay your attention. Be attentive. Take example 3.350. Okay, sir, dropping number is 50. Before dropping number preceding digit is odd. It means replaced by PD plus 1. तो इसका जो approximation होगा, that is the 3.4. Why? PD preceding digit 3 में 1 ऐड करना होगा आपको. by adding 1 आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा. कब? जब आपका ड्रॉपिंग नंबर 50 हो और ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो. Let's another example. This is the first example you can say. This is the another example. I'm saying 3.35. Okay, now I'm taking, this is the dropping digit 5. So check before 5. So this is the
odd preceding digit, PD stands for preceding digit. सर 3 preceding digit है, odd है, तो हम क्या करेंगे PD plus 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसका अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 3.4. आई होप क्लियर हुआ होगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलते हैं नेक्स्ट पे. यस, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें. Yes, dear student, we have another rule number 4. You can say, sir, if there is 51, dropping digit is 51, then what should we do? You can do, dear student, what? So, preceding digit plus 1, जो preceding digit है उसमें आप 1 ऐड करें. Like that you can say, example के लिए हम बोल सकते हैं 3.251. So what can you say now? Approximation, sir, dropping number is 51 and preceding digit is 2, so there is no need to check even or odd in this case. Only the need for 5 or 50 to check whether PD is even or odd. In case of 51, 52, 53, there is no need. So you can direct add 1 in preceding digit, you will get 3.3. Okay, if we take an example of odd number, you can say like that 351 353. So this is the dropping digit 53, greater than 50, so direct you can add 3.4. got the point? I hope you enjoy. very good. now अब मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, सो रेडी रहिएगा. ओके, yes dear student, now we have another calculation based significant rules. Rule first is saying that in calculation how will you determine the significant figures, what should we to write results. This is the very important. okay, उन यूज रूल्स को राउंड ऑफ और जो सिग्निफिकेंट रूल्स को यूज कैसे किया जाता है देखिएगा. In addition and subtraction, the resulting numbers should be rounded off according to the least decimal points. Sir, example समझिए. wait. In multiplication and division, the resulting number should be rounded off according least significant figure. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग रिजल्ट हम राउंड ऑफ करेंगे, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट हम बात करें. दिस इज द एग्जाम्पल फर्स्ट. सर ऐड कीजिए 3.33 प्लस 3.1 प्लस 0.315. ऐड कीजिए. ऐड आप जब इसको करेंगे तो आपको पता लग गया होगा. अगर आप इसको ऐसे ऐड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है. आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट है. क्या देखना है? डेसिमल पॉइंट. सिग्निफिकेंट 3 है, सिग्निफिकेंट 2 है, सिग्निफिकेंट 3 है, ऐसा पता लग गए. सिग्निफिकेंट डिजिट कितने है इसमें? 0.315 में 3 है. गॉट द पॉइंट. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3.3 है. ठीक है, 3 है. सो हमें पॉइंट क्या देखना है? डेसिमल पॉइंट देखना है. डेसिमल पॉइंट देखिएगा, इसमें 2 के लिए है, इसमें आफ्टर 1 है, यू कैन सी यहाँ पे 3 है. ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स 3 है, 1 है या 3 है. हमें जो फॉलो करना है वो लीस्ट डेसिमल. पहले आप इसका सम कीजिए. व्हाट इज द सम ऑफ इट? सो यहाँ से आप 1, ये हो जाएगा 5, फिर 1 1 2 सॉरी 0 है, 0 3 4. ठीक है, ओके. 5 थर्ड नंबर पे कोई नहीं था, यहाँ पे 1 3 4. ठीक है, 347.0336. तो ये एक्चुअल इसका सम है, बट वी वांट टू बी राउंडेड ऑफ रिजल्ट. सो व्हाट क्या चाहिए हमें? राउंडेड ऑफ रिजल्ट चाहिए टू बी मेक इट राउंडेड. सो क्या होना चाहिए? सर लीस्ट डेसिमल. सर लीस्ट डेसिमल, दिस इज द सिंगल डेसिमल पॉइंट. सिंगल डेसिमल पॉइंट. सो व्हाट कैन यू राइट? जो आंसर होना चाहिए वो राउंड ऑफ करना है आपको. अब यहाँ से चेक कीजिएगा, इट इज़ 6.745.
अब जो ये ड्रॉपिंग डिजिट है, अब जिसको 4 को हमें ड्रॉप करना है, ये 4 आ रहा है लेस देन 5 है, तो दैट विल बी 6.7, दैट विल बी 6.7। हाँ, ये अगर 5 होता, 6 होता, 7 होता, ये डिजिट हम जिसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं यहाँ से, या 50 होता, 51 होता, ये 45 आ रहा है यहाँ से, देखिए गॉट द पॉइंट। अगर पूरा नंबर देखना चाहते तो 45 है, ये 50 और 51, 52 तो हम वो रूल यहाँ पे अप्लाई करते, लेकिन ये लेस देन है तो हम 6.7 एज इट इज। टेक अनदर वन एग्जांपल, यू कैन से if we say 256 plus 25.25 plus 5.625। सो अगेन यहाँ पे लीस्ट डेसिमल पॉइंट कितना है? सर लीस्ट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कितना है? 0, तो यहाँ पे नो लीस्ट डेसिमल, नो डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, सो हमारा आंसर में भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए। सो पहले आप इसका सम करें, 5 थर्ड नंबर कुछ नहीं है यहाँ पे, 5 एज इट इज, फिर आप ऐड करें 277, ओके पॉइंट, फिर आप 628 डेसिमल पॉइंट, 5 30 एंड यहाँ पे जब ऐड करेंगे आप, ये हो गया यहाँ से 25 एंड 30 ये हो जाएगा 86 to 86.87, but there should be no decimal point, so it should be rounded off to 87. Why 87? Because यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग डिजिट्स है वो क्या है? 8। यहाँ से देख लें आप, 8 है, ग्रेटर देन 5 है, तो आप जब जैसे राउंड ऑफ करेंगे प्रीसीडिंग डिजिट को क्या पुट करेंगे? 1 आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 287। गॉट द पॉइंट? सो यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या देखना है? लीस्ट डेसिमल पॉइंट देखना है कि कितने हैं। सब्ट्रैक्शन का भी आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट, अच्छा सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लें, ओके ठीक है, सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। Okay, this is the example for subtraction. So there is no digit, so you can consider 0. So 10 to 8, 990, 13 to from your 9, 7 minus 5 will be 2. सर ये तो आप सब्ट्रैक्शन सिखाने लग गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हाँ जी, 12 4 8 एंड 5 3। देख लीजिएगा, गलत हो जाएगा तो डांटिएगा मत कि सर सब्ट्रैक्शन गलत कर रहे हो। यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं है, 0 कंसीडर करूँगा तो यहाँ 10 to 8 हो गया, 990 हो जाएगा, 3 में 4 या 13 4 9 और 7 5 2, यहाँ से 12 4 8, ये 5 3, ओके 38। नाउ what should we keep in mind? सर लीस्ट डेसिमल पॉइंट, लीस्ट डेसिमल पॉइंट कितने हैं सर? 3। कितने हैं? 3 लीस्ट डेसिमल पॉइंट, तो आंसर भी शुड बी इन लीस्ट डेसिमल पॉइंट 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3। सो राउंड ऑफ कीजिए, आपका जो आंसर आ रहा है 38.2908, इसको राउंड ऑफ कीजिए। अब आप देख रहे हैं जब यहाँ पे 3 में आपको केवल यहाँ तक आपको आंसर लिखना है डेसिमल पॉइंट 3, लेकिन जो ड्रॉपिंग डिजिट है 8 वो ग्रेटर देन 5 है, सो यू हैव टू एड 1 in preceding digit. 0 is preceding digit, तो add by 1, तो ये it will be 29.1. तो this is the correct answer. तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा इन ऑप्शंस। जेई एडवांस और जेई मेन में कभी कभी आपके साथ में गेम खेलते हैं विथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नाउ मूव ऑन मल्टीपल एंड डिवीजन। सो रेडी? यस। Yes dear student, we have example for multiplication. 142.06 is multiplied by 0.23. Then what is the result, accurate result? This is the multiplication result. Directly we have
multiply this and we got this 32.6738. Now what should be our answer? Sir, we should observe least significant figure and our result should be according rounded of least significant figures. So कितना है यहाँ पे? सर यहाँ पे least significant, यहाँ पे देखिएगा कितना है SFS 1 2 3 4 5. सर यहाँ SFS है 5. ओके यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है 5. एंड यहाँ पे SFS की हम बात करें, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें तो कितना है 1 and 2. सो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होने चाहिए? सर 2 होना चाहिए. सो अपना आंसर भी लीस्ट सिग्निफिकेंट. यहाँ कितने आ रहे हैं 2 2 6 और यहाँ कितने आ रहे हैं 6. तो राउंडेड ऑफ जब आंसर इसका आप लिखेंगे, राउंडेड ऑफ जब आंसर लिखेंगे 32.667 तो ये ग्रेटर देन 5 है तो आप कैरी कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 33. दिस इज योर आंसर for multiplication. Got the point? This is your answer in rounded off according the least significant digit. यहाँ पे 2 least significant digit है, so our result should be in 2 significant digits. Got the point? इस तरह से फिजिक्स में आंसर लिखे जाते हैं, so be careful. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ओके रेडी? Yes, we have another example for division. 0.90 is dividing by 4.26 and we will get a quotient 0.21126676. Okay, now this is our correct answer? No, it is actual division but not our actual answer, correct answer you can say. So what is that? Sir, हमें follow करना पड़ेगा least significant figure. ओके तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? कैन यू टेल मी? SFS, यहाँ SFS की हम बात करें तो देर आर 2. ये काउंट नहीं होगा, 9 and 0 काउंट होंगे क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद में है 0. ओके हाँ जी, एंड नॉन जीरो डिजिट के पास में है इसलिए. ओके नाउ यहाँ पे तो क्लियर नज़र आ रहा है आपको. अगर नहीं पता तो आप रूल्स को अच्छे से फॉलो करें जो अभी पढ़े हमने. फिर यहाँ 3 हैं तो अपना आंसर भी क्या होना चाहिए? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 2 में होना चाहिए. सो व्हाट शुड बी दैट? सर ये इट विल बी, यहाँ से आप देखें 0.211267. सो दीज आर द terminating numbers you can say, so it will be 2.1 0.21 our correct answer. So I hope you enjoy. So try करें. और फिजिक्स में इसी तरह से आंसर दिए जाते हैं, इसलिए फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना मुश्किल होता है. और कंपटीशन में जेई मेन और जेई एडवांस में और KCET केरला जो है, केरला के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम और कुछ एडवांस एग्ज़ाम जो बात करेंगे वो अच्छे ओलंपियाड लेवल, वहाँ पे इन चीज़ों को ज़रूर देखा जाता है. अगर आप अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा लेवल का एग्जाम आप फाइट कर रहे हैं, तो यू शुड कीप इन माइंड ऑल दिस पैरामीटर ड्यूरिंग राइटिंग योर आंसर. ओके, ऑल द बेस्ट. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.